A very warm good afternoon to all. How are you? I hope you all are good and doing well at your home and taking a good care of yourselves. And I know that you have gone through the last two videos also, in which we have covered up to page number 18, right? So this side Subri Pasricha welcomes you in the video lecture of general knowledge, and I request you to join your hands and close your eyes before starting our class, and let's pray to God. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for protecting us and keep blessing on us. Thank you. So I hope you have gone through the syllabus which I have given you in the Zoom class, the LS as well as the GK syllabus. So here today we are with two more topics, that is page number 19, page number 20 and 21. Fine. So page number 19, the topic is the most unpopular rulers. Like see, rulers कौन होते हैं? आप सब लोगों को पता है, जो रूल करते हैं, जैसे हमारे अकबर, टीपू सुल्तान, ब्रिटिशर्स, इन सब ने रूल करा था. कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे रूलर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे राजा होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत बुरे भी होते हैं, राइट? जो बहुत फेमस नहीं होते या अनपॉपुलर हम उन्हें बोलते हैं. So we are going to study about those unpopular rulers in our first topic. The page number is 19. Topic is the most unpopular rulers. Though the first one is this. Again, I am going to do the same form. Austrian. अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसे डैश डैश डैश. अगर आप इसकी फोटो देखोगे तो शायद आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ये कौन है. आई थिंक आपको फोटो से तो पता चल रहा होगा ये हिटलर है. ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. This Austrian-born German dictator was known as Führer and founded Nazism. इसने तो नाज़िज्म फाउंड करा था. ऑस्ट्रियन बॉर्न है, ये डिक्टेटर है. His dream of expanding German territories, उसका एक ड्रीम था कि वो जर्मन टेरिटरीज को एक्सपेंड करे, led to the outbreak of the World War II. He is the one जिसकी वजह से World War II हुआ था. He committed suicide, shooting himself. उसने सुसाइड कर लिया था. कैसे? अपने आप को शुभ कर लिया. So the first unpopular ruler is Adolf Hitler. Adolf Hitler. Yes, he is the one जिसकी वजह से World War II हुआ था. Second, he was German. I hope you have book with you and you are noting down the answers. और अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी. He was the fiercest dictator of Italy. ये इटली के थे. He took part in World War II from the side of the Germany. इन्होंने World War II में पार्ट लिया था. कहाँ से? जर्मनी की तरफ से. The unpopular ruler is Benito Mussolini. Mussolini. Benito Mussolini. Third, he was the president overthrown. Okay, so he was the president of Uganda. ये युगांडा के प्रेसिडेंट थे 1971 से 79, यानी कि 8 साल. He was one of the modern Africa's harshest dictator. मॉडर्न थे बट सबसे हार्शियस्ट डिक्टेटर थे. He was finally overthrown. इन्हें भी निकाल दिया गया था. Who is he? Idi Amin. Idi Amin basically. Idi Amin. ADIAMI. So note down the three answers. I'm giving you a time of 1 minute. After that, we'll do with the last 3. I hope it is done. Okay. So let's move on to the last 3 most unpopular rulers. 4. He was the 10th president and eventually exiled.
He was the 10th president of Philippines. ये फिलीपींस के 10th president थे and ruled from 1965 to 86. 65 से 86 तक इन्होंने रूल करा. His administration was marked by authoritarianism. मतलब जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, इट मीन्स अथॉरिटी वाला था, करप्टेड था, करप्शन, पॉलिटिकल रिप्रेशन, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा खराब था, ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन थी. इसमें ह्यूमन राइट्स बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ज्यादा वॉयलेट यानी कि उन सबको निग्लेक्ट किया जा रहा था. ही वॉज इवेंचुअली एक्साइल्ड, उन्हें भी निकाल दिया गया था. एंड हिज नेम इज फेर्डिनेंड मार्कोस. FRIDINAND Marcos, right? Fifth. He was the 5th president of Iraq. इराक के 5th president थे. Ruled from 1979 to 2003. इन्होंने 79 से 2003 तक रूल करा. He was widely condemned for brutality of his dictatorship. यानी कि बहुत बुरे डिक्टेटर थे ये. ब्रुटैलिटी का मतलब होता है कि मारना, पीटना, ब्रूचर्स होता है ना जो जानवरों को मारते हैं वो. In 2003, coalition forces of the UK and US disposed him and in 2006 he was executed. जो UK और US की फोर्सेस थी उन्होंने उनको डिस्पोज कर दिया था 2006 में. एग्जीक्यूटेड यानी कि बाहर निकाल दिया गया था. एंड ही वाज, his name is Saddam Hussein. And his name is Saddam Hussein. अगर आपको लगता है कि that you are not able to see the spelling, तो नीचे बोर्ड हेल्प बॉक्स है, आप उसमें से इनकी स्पेलिंग चेक आउट कर सकते हैं. लास्ट वन इज he ruled over Libya from 1969 to 2011. Okay, इन्होंने लिबिया में रूल करा. He has been labeled as a disposed for his high-handed policies. इनकी जो high-handed policies थी वो ज़्यादा बेकार थी. An uprising in 2011 forced him to flee from Tripoli. जो अपराइजिंग हुआ था 2011 में, ये ट्राइपोली से फोर्स हो गए थे. एंड ही वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड बाय NLA फाइटर्स. यानी कि ये मतलब बाय एयर कोशिश कर रहे थे गायब होने की, लेकिन इन्हें NLA फाइटर्स ने पकड़ के मार दिया था. एंड हिज नेम इज मुअम्मर गद्दाफी. नाम में गद्दाफ है, यानी कि सोचो कितना गंदा बोल रहे हैं. MUAMMAR Gaddafi. Done? Okay, note down the answers. Today we are going to do page number 20 as well as 21 also. Fine? Done? Okay. So let's begin with the rest of the chapter, that is page number 20 and 21. The name is the seat of a power. Okay, so we are on page number 20 and 21, the seat of a power. Parliaments of the world. हमें world के parliaments बताने हैं this page. Fine? Okay, so let's begin. हम इसमें A एक्सरसाइज करेंगे. A का first. Parliament of a country जो ऊपर लिखा हुआ है is a legislative body where the elected representative of the nation meet and form policies. पार्लियामेंट क्या है? एक ऐसी लेजिस्लेटिव बॉडी है जहां पे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू इलेक्शंस ऑफ द नेशन, पूरे नेशन के लिए, और वहां पे नई पॉलिसीज फ्रेम होती हैं. दे पास बिल्स एंड एक्टमेंट्स. बिल्स और एक्टमेंट्स पास करते हैं. लेट्स नो देम बेटर. विद द हेल्प ऑफ द बॉक्स जो हम ए वाले एक्सरसाइज करने वाले हैं, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड रिटन इन द स्पेस प्रोवाइडेड. आपको पार्लियामेंट की पिक्चर्स ये आइडेंटिफाई करनी है एंड यू हैव टू राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. Right? So the first one is, it is London. Right? Now I am reading the whole sentence and explaining it to you. It is the national parliament of Norway. Norway का national parliament है ये. Norway is a kingdom having parliamentary monarchy
नॉर्वे का ऐसा किंगडम है जिसमें पार्लियामेंट मोनार्की है. इट वॉज बिल्ट इन 1861 to 66. 61 से 66 में बिल्ट हुआ था बाय स्वीडिश आर्किटेक्ट एमिल विक्टर लैंगलेट. ये एमिल विक्टर लैंगलेट ने आर्किटेक्ट प्रोड्यूस करा था. सो क्या नाम है इसका? दैट इज स्टुअर्ट टेंट. ठीक है. सेकंड, Denmark has multi-party system. Its parliament has 179 seats. डेनमार्क का है ये, राइट. और पार्लियामेंट मल्टी पार्टी सिस्टम है. इसमें कितनी सीट्स है? 179 इसमें सीट्स है. इट इज द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क. डेनमार्क का नेशनल पार्लियामेंट है. द नेम लिटरली मीन्स द पीपल्स थिंग. इस पार्लियामेंट का नाम होता है, मतलब नाम का मतलब है द पीपल्स थिंग, लोगों की चीज. दैट इज फोकटेल्ट, FOLKE. और ये ऊपर वाला ही कॉमन स्पेलिंग TING. या तो आपको स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, दो की सेम. थर्ड, एक्सक्यूज मी, इट इज अ पार्लियामेंट ऑफ जापान. जापान का पार्लियामेंट है. इट वॉज बिल्ट इन 1930 एंड ओपन इन 1936. 1930 में तो बनाया गया था और 1936 में ओपन किया गया है. द पार्लियामेंट इज नेशनल डायरेक्ट. कहाँ का पार्लियामेंट है ये? जापान का. इट इज करके 1936. इट्स द आंसर इज नेशनल डायरेक्ट. Note down the answer. Let me write one more. Both की space है. It is easily visible to you. The Parliament of Israel. Israel का है ये. Is unicameral. Unicameral है यानी कि हर जगह कैमरा लगे हुए हैं. And has 120 members. 120 members है इसके. 4 साल के इलेक्ट किए जाते हैं. It is located in Givat Ram, Jerusalem. Givat Ram में है ये, जेरूसलम में. क्या बोलते हैं इसे? Knesset. The answer is Knesset, Jerusalem. क्या है इसका आंसर? Knesset, KNESSET. फाइन. मैं आंसर्स को बॉक्स में लिख रही हूँ ताकि आपको अलग से दिख जाए. And you can note down the answers very easily. Note it down. I am waiting. I hope you have done. Fine. Okay, so let's move further. अभी हम A एक्सरसाइज पे ही हैं. हमारी A एक्सरसाइज के 2 और रह गए, 2 पार्ट्स रह रहे हैं हमारे. फिफ्थ वन, दैट इज इट इज अ फेडरल लेजिस्लेटिव बॉडी इन जर्मनी. ये जर्मनी की फेडरल लेजिस्लेटिव बॉडी है. इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1949. 1949 में ये इस्टेब्लिश हुई थी एज अ सक्सेसर ऑफ अर्लियर रिच स्टार्ट. किस चीज का सक्सेसर था? अर्लियर रिच स्टार्ट का 1949 में. सो द आंसर इज, इसका आंसर क्या है? फिफ्थ का आंसर इट इज, इसका जो आंसर है उसकी आधी स्पेलिंग आपके क्वेश्चन में ही है. द आंसर इज बर्नस्टाड. BUNDESTAG. स्टैग के उसी में से आ गया. बर्ड स्टैग आपको याद करना है सिर्फ. फाइन. लास्ट वन इज पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. इसका हमारा इंडिया रिपब्लिक का कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में. इट इज द सेंटर विच डिसाइड्स द फेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. ये इंडियन डेमोक्रेसी का फेट डिसाइड करती है. क्या है इसका आंसर? दैट इज फोक
टेंजेंट। सॉरी, इट्स नॉट फोक टेंजेंट, इट्स संसद भवन। इसका आंसर है संसद भवन, संसद भवन। Clear? Okay. Note down these two answers also. Noted? Okay. चलो let's move further. Now on the B exercise. ये आपकी क्रॉसवर्ड पजल है, ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल है बी एक्सरसाइज आपकी. बट हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द आंसर? आई एम गोइंग टू राइट डाउन द आंसर डायरेक्टली. आप इसे क्रॉसवर्ड पजल में खुद फिल करेंगे. फाइन. ये बी एक्सरसाइज है आपकी, बी एक्सरसाइज. जैसे इसमें आंसर दे रखे हैं अक्रॉस, तो मैं पहले अक्रॉस के आंसर लिखूंगी, देन आई विल राइट द आंसर्स ऑफ डाउन. ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ही मैं आंसर्स लिखने वाली हूँ. फाइन. पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश. पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश को हम क्या बोलते हैं? दैट इज जेटीओ संसद. फाइन. जेटीओ संसद. पार्लियामेंट ऑफ इजराइल. इजराइल के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं हम? कैंसेट. ये हमने अभी पढ़ा है. पार्लियामेंट ऑफ जापान, डाइट, नेशनल डाइट जिसे हम बोलते हैं. एंड पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी इज नोन एज बंडस्टैग. ये सारे हमने अभी पढ़े हैं और अब इन्होंने आपको क्रॉसवर्ड पजल में दे दिए. ठीक है, नोट इट डाउन. होप यू हैव डन इट. नो नो. ओके, चलो वेट, मैं अभी यहाँ पे डाउन लिख रही हूँ सिर्फ. Note it down properly. I am giving you some time for note it down also. It's 5th. I am writing down the numbers only. 6, 7, and 8. Yes, I am getting excited. Don't worry about that. Fine. Note. Very good. Okay. The 5th one is Parliament of India. India के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? संसद भवन. अभी हमने बिल्कुल लिखा था ऊपर संसद भवन. पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान. पार्लियामेंट सॉरी पाकिस्तान के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? मजलिस. MAJLIS. ठीक है. पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे. नॉर्वे के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? स्टॉर्टेंजेंट. सबसे पहले हमने यही लिखा था स्टॉर्टेंजेंट. फर्स्ट हमारा जो था यही था, नॉर्वे के बारे में था. नाउ यू आर गेटिंग द आंसर. ओके. नाउ द लास्ट वन इज पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क. डेनमार्क के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? फॉक टेंजेंट. डन. फाइन. ओके. So note it down all the answers properly. I am giving you the time to note it down. Go through the work which I have given you today. I am sending you the PDF also. जिनके पास बुक नहीं है वो PDF में से नोट डाउन करेंगे. I mean PDF में से पढ़ेंगे, और जिनके पास बुक है वो बुक में से पढ़ेंगे. ठीक है, done. So I request you all to stay home, stay safe and take care of yourself. Bye.